Hello guys, now we will study class 10th NCERT Democratic Politics chapter first, power sharing, topic Khalil's dilemma. Okay, here we will study the some story and we will able to conclude the some dilemmas. Okay, as usual, Vikram was driving the motorbike under vow of silence and Vettel was पीलन राइडर ओके जैसे सभी करते हैं वैसे एक पर्सन था विक्रम हु वॉज ड्राइविंग द मोटर बाइक ओके एंड ही वॉज साइलेंटली ड्राइविंग द मोटर बाइक एज यूजल बिटल स्टार्टेड टेलिंग विक्रम अ स्टोरी टू कीप हिम अवेक वाइल ड्राइविंग दिस टाइम द स्टोरी वेंट एज फॉलोज ठीक है जैसे कि दूसरा पर्सन था ठीक है उसके बगल में जो बैठा था बिटल ओके वो विक्रम को ताकि उसे नींद ना लगे उसे एक स्टोरी सुनाने लगा और ताकि वो पूरे टाइम जगह रहे और ड्राइव कर सके तो ये स्टोरी ऐसे होती है इन द सिटी ऑफ बेरट देयर लिव्ड अ मैन कॉल्ड खालिद ओके एक सिटी थी बेरट करके वहाँ पे एक पर्सन रहता था जिसका नाम था खालिद हिज पेरेंट्स केम फ्रॉम अ डिफरेंट कम्युनिटीज़ हिज फादर वॉज एन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन एंड मदर एज अ सुन्नी मुस्लिम ठीक है सुन्नी मुस्लिम ओके उसके जो पेरेंट्स थे वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ से आए थे ठीक है और उसके फादर्स जो थे वो एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे और मदर जो थी एक सुन्नी मुस्लिम थी दिस वॉज नॉट सो अनकॉमन इन दिस मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटन सिटी सो यू कैन सी कि लाइक हिज पेरेंट्स वेर द फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन okay and mother were from the Sunni Muslim so in generally if we talking about the cosmopolitan city or the modern class people so this are things are not very common people from various communities that lived in a Lebanon came to live in the capital Beirut okay people from the various communities of people who were earlier living in the Lebanon city they came and they shifted to the Beirut city they lived together intermingled and fought a bitter civil war among themselves one of the Khalid's uncles was killed in the war so what happened they were the war there were the war occur between the at this two communities of the peoples and that war was a civil war and the in this war the one of the Khalil's uncles were killed okay at the end of the civil war Lebanon's leaders came together and agreed to the some basic rules for power sharing among different communities okay so what happened at the end of civil war when the civil war was ending so Lebanon's leaders they came together and agreed on the some basic rules of power sharing among different communities see there were basically the civil war was occurring due to the different communities so they got agreed on the some point as per this rules the country's president must belong टू अ मैरोनाइट सेक्ट ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियन ठीक है यहाँ पे जो रूल्स था बनाया गया था उस रूल्स के अकॉर्डिंग क्या था कि जो कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट होंगे वो मैरोनाइट सेक्ट से बिलोंग करने चाहिए कैथोलिक क्रिश्चियन से द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी फ्रॉम सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी एंड द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी द सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी द पोस्ट ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इज फिक्स फॉर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सेक्ट एंड दैट द स्पीकर ऑफ शियाज मुस्लिम सी हाउ दे आर गेटिंग एग्रीड ऑन द some specific point like president should be from this community prime minister should be this community deputy prime minister should be this communities okay under this pact what happened Christian agreed not to the French protection and Muslim agreed to not to seek on unification with the neighboring state of Syria when the Christian and Muslim came to this agreement they were nearly equal in the population what happened when the Christian and Muslim they came to this agreement they were nearly equal in a population both sides have continued to respect this agreement through now Muslim are in a clear majority so what happened both this people this community get clear equal and they get agreed on the some specific agenda Khalid does not like this system on one bit but Khalid people does not Muslim people like this because see you can see there were the lots of majority for the Muslim people but the Khalid did not like it he is a popular man with the political ambitions but under the present system the top position is out of his reach okay so what happened talking about the Khalid person he was a Khalid under the they were the I think top position under the many peoples
He does not practice either his father or his mother religion and does not wish to know by either. So Khalil was a person who does not possess ever, does not practice ever, neither of his father's nor of his mother's religion, and does not wish to know of by either. He cannot understand by Lebanon can't be like any other normal democracy. उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जो लेबनान है वो एक नॉर्मल डेमोक्रेसी का हो सकता है. जस्ट होल्ड एन इलेक्शन, अलाउ एवरीवन टू कंटेस्ट एंड whoever wins maximum votes become the president, no matter which committee he becomes from. Why can't we do that in other democracies of the world? So what was the question was coming in the Lebanon's mind, like why we are following the particular religion, particular community for the prime minister, particular people for the particular religion for the president, particular religion for deputy prime minister, all this. Why can't we just hold a election, okay, and allow everybody to contest, and whoever wins, जिसको सबसे ज़्यादा सीट मिलेगी, जो जीतेगा वही प्रेसिडेंट होगा, वही बाकी चीज़ होगा. उससे मैटर नहीं करता है कि वो प्रेसिडेंट कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करता है. ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते जैसा दूसरे के डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में और दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है. ही आस्क, उसने पूछा, हिज एल्डर who has seen the bloodshed of the civil war tell him the present system in the best guarantee for the peace. जो उसके कुछ एल्डर्स थे जिन्होंने वो bloodshed, लाइक जब सिविल वॉर वहाँ पे हो रही थी, ठीक है, तो उन्होंने वो bloodshed देखे थे कि कैसे खून की नदियाँ बह रही थी, कैसे लोग वहाँ पे प्रॉब्लम्स में थे. तो वो उसे बताते हैं कि ये जो अभी चल रहा है ये सबसे पीसफुल एक सॉल्यूशन है. अगर हम डेमोक्रेटिक वे में जाते हैं तो फिर से सिविल वॉर होगा और फिर से bloodshed होगा. द स्टोरी was not finished, but they had reached the TV tower where they stopped every day. Vittal wrapped up quickly and posted his customary question to Vikram. Okay, so what happened? The story was not finished. Okay, but this both bike rider, they reached to the some TV tower and they stopped as usual. They used to go and stay somewhere sometime there. Vittal wrapped up the quickly and posted his customary question to Vikram. Okay, so they just wrapped and posted a customary question to the Vikram. If you had a power to rewrite the rules in the Lebanon, what would you do? Okay, तो विटल जो था वो पूछता है कि अगर तुम्हारे पास राइट होता विक्रम से, कि अगर तुम्हारे पास राइट होता है कि तुम फिर से लेबनान के रूल्स को लिख सकते हो और तुम तो क्या करोगे. व्हाट यू अडॉप्ट द रेगुलर रूल्स फॉलोड एवरीवेयर एज खालिल सजेशन. क्या तुम ये अडॉप्ट करोगे कि जैसे खालिल ने बताया था कि ये इसलिए नहीं हो सकता कि यहाँ पे ब्लड शेड हुई थी, सिविल वॉर हुआ था, क्या तुम उसी रूल्स को अडॉप्ट करोगे या तो तुम कुछ नया करोगे, ठीक है, या कुछ नए रूल्स को फॉलो करोगे, या तो जो पुराना रूल्स था उसमें कर दोगे या कुछ अलग करोगे. विटल डिड नॉट फॉरगेट टू रिमाइंड विक्रम ऑफ द देयर बेसिक पैक्ट. बट जो विटल था उसने विक्रम को बोला कि लेकिन बेसिक जो पैक्ट है वो मत भूलना. इफ़ यू हैव आंसर इन अ माइंड एंड डू नॉट स्पीक अप, योर मोबाइल विल फ्रीज एंड सो विल यू. तो उसने बोला कि अगर तुम्हें आंसर है तुम्हारे माइंड में तो डोंट स्पीक अप, क्योंकि जो तुम्हारी बाइक है दैट विल फ्रीज एंड सो विल यू, और तुम भी, ठीक है. कैन यू हेल्प पुअर विक्रम इन आंसरिंग द विटल. क्या आप उसे विक्रम को बता सकते हो कि ताकि वो आंसर कर सके विटल को. देखो जो हमने ये होल स्टोरी पढ़ी, इस स्टोरी में हमने ये देखा कि जनरली एक सिटी थी बेरिट, ठीक है, वहाँ पे कुछ कम्युनिटीज़ के लोग रहते थे, ठीक है, क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के रहते थे, मुस्लिम कम्युनिटीज़ के रहते थे, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कम्युनिटी के पीपल रहते थे. वहाँ पे क्या हुआ, अचानक से एक दूसरे कम्युनिटीज़ के लोग भी वहाँ पे आ गए, लेबनान, ठीक है, दैट लीव, जो अदर कम्युनिटीज़, वेरियस कम्युनिटीज़ के, मतलब वहाँ पे सिर्फ एक कम्युनिटीज़ का पीपल नहीं था, वहाँ पे वेरियस कम्युनिटीज़ के पीपल थे. वो लेबनान सिटी में पहले रहते थे, वे वेरियस सिटी में आ गए. अब देखो जनरली क्या होगा कि एक सिटी में अगर 10 कम्युनिटीज़ के लोग रहेंगे तो ऑब्वियसली उनके लिविंग स्टैंडर्ड, उनके कल्चरल एक्टिविटीज़, उनकी सारी चीज़ें अलग होंगी और उनके बीच में वॉर तो होगा ही, ऑब्वियसली फाइटिंग तो होगी. तो रिज़ल्ट क्या हुआ था कि वहाँ पर सिविल वॉर हुआ और सिविल वॉर में उन्हें कुछ कंक्लूजन निकाला कि हम अब कैसे फॉलो करेंगे. तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि प्राइम मिनिस्टर इस कम्युनिटी का होगा, प्रेसिडेंट इस कम्युनिटी का होगा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इस कम्युनिटी का होगा, ठीक है, और स्पीकर इस कम्युनिटी का होगा, ये सारी चीज़ें होंगी.
तो ये एक स्टोरी थी जो वेटल जो था वो विक्रम को अपने दोस्त को सुना रहा था। तो बेसिकली इस स्टोरी में वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उससे लास्ट में तो यहाँ पे जो खालिल है, एक खालिल, ये बेसिकली एक स्टोरी थी, वो खालिल की ही स्टोरी थी, ठीक है, जिसके पेरेंट्स से स्टार्ट हुई थी। तो उसको ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। वो बोलता है कि हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते हैं कि जैसे दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है कि दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्री में जैसे कि इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद जो मेजोरिटी सीट को विन करता है वही रूल करता है एज अ प्रेसिडेंट, एज अ अदर ऑथराइज्ड पर्सन। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ को फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो उसके जो एल्डर्स पीपल रहते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, आपने वो सिविल वॉर की ब्लड शेड नहीं देखी है, वो तो हमने देखी है। अगर आपने देखा होता तो आप ऐसे नहीं बोलते। और अगर हम इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करेंगे जो अभी चल रहा है, तो हमारे फिर से सिविल वॉर हो सकते हैं और ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जब ये स्टोरी विट्ठल विक्रम को सुनाता है और वो एक प्लेस टावर पे पहुंचते हैं और वहाँ पे वो जैसे यूजुअली रुकते हैं वहाँ पे वो रुक जाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि वेटल जो है विक्रम को एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन देता है कि बोलता है कि अगर तुम्हें एक चांस मिले, एक अपॉर्चुनिटी मिले कि लेबनान की जो भी रूल्स है उसे लिखो, तो तुम क्या लिखोगे, ठीक है। तुम क्या फॉलो करोगे, तुम क्या खालिल को कुछ सजेस्ट करोगे, तुम उसके आंसर क्वेश्चन जो है कि हम डेमोक्रेटिक क्यों नहीं फॉलो कर सकते, क्या तुम उसकी हेल्प करोगे, कुछ ऐसा करोगे। तो उसको बोलता है कि लेकिन तुमको ये जो बेसिक फैक्ट है वो नहीं भूलना है, बेसिक फैक्ट को लेके चलना है। तो तुम क्या करोगे। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ये बताना है कि अगर आप विक्रम के प्लेस पे होते तो आपका आंसर क्या होता, आप क्या आंसर देते। तो ऑब्वियसली मतलब कि एज़ पर माई व्यू ऑल्सो कि डेमोक्रेटिक रूल्स ही सबसे बेस्ट रूल्स है, ठीक है। अगर हम कम्युनिटी वे में जाएंगे तो किसी एक कम्युनिटी अगर हायर अथॉरिटीज़ पे, दूसरी कम्युनिटी लोअर अथॉरिटीज़ पे, तो ऑब्वियसली फिर से वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगी, ठीक है। सो हैविंग द पावर शेयरिंग का मतलब यहाँ पे है कि ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक पावर sharing. So I hope you have understand this and enjoyed this class. We'll come to the next class with the next topic.